ضرور، وہ میرے برابر ہی کھڑی ہے. دو بیٹی بات کر. آداب نانا جان. یہ کیا بکواس میں سن رہا ہوں تانیہ؟ کون ہے یہ لڑکا؟ تم نے کہاں دیکھا تھا اس کو؟ کب سے جانتی ہو تم اسے؟ کیسے راضی ہو گئی تم؟ نانا جان، ایمان سے میں نے بالکل نہیں دیکھا اور نہ میں جانتی ہوں، مگر آپ تو کہتے تھے نا کہیں بھی شادی کر لو. بکو مت. مجھے یہ بتاؤ، تمہیں اس شخص نے مجبور کیا ہے؟ جی نہیں تو تم اپنی مرضی سے ہاں کر رہی ہو؟ جی ہاں. پسند ہے تمہیں وہ لڑکا؟ پسند کیسے ہو سکتا نانا جان بغیر دیکھے ہوئے؟ مگر ٹھیک ٹھاک ہے، یہ گزارے لائق ہے. یہ لڑکا شعیب صاحب کی ساری دولت کا وارث بھی ہے. جی ہاں. احمق لڑکی، تم یہ کام گھر سے نہیں کروا سکتی تھی؟ کیا ہمارے گھر میں ٹیلی فون نہیں ہے؟ جی میں بعد میں فوراً گھر آ جاؤں گی. اچھا، اب اس شخص کو دو فون فوراً. اچھا، آپ سے بات کریں گے. جی میں سن رہا ہوں. یہ آپ نے کیا مجھے الو سمجھا ہوا ہے؟ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ ترکیب آپ نے محض مجھے شکست دینے کے لیے چلی ہے. لیکن خیر، اگر لڑکا اچھا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر سنیے، نکاح کے بعد تانیہ گھر آ جائے گی اور جب تک میں لڑکے کو خود نہیں دیکھوں گا ہرگز رخصت نہیں کروں گا. سمجھے آپ؟ یہ میری شرط ہے. مجھے منظور ہے. تو پھر آپ کل صبح تشریف لا رہے ہیں؟ ظاہر ہے میری نواسی کوئی لاوارث تو نہیں ہے کہ ایرے غیر اس کا ہاتھ پکڑ کر نکاح پڑھوا دیں. میں موقع پر خود موجود رہوں گا. سمجھے آپ؟ خدا حافظ. خدا حافظ. عجیب بات ہے، کمال کر دیا تم نے. ایسے موقع پہ غائب ہو گیا. میں اکیلا کیا کچھ کرتا. ہیلو یار، میں نے سارے جتن کیے مگر ان لوگوں پہ کوئی اثر نہیں. میں تائی اماں بیچاری تک کو قبر سے نکال کر لے آیا مگر کیا ہوا؟ یار مردوں سے بھی نہیں ڈرتے شعیب انکل. خدا جانے مرنے کے بعد ان کا کیا حشر ہوگا. بہرحال اس بے وقوف لڑکی نے نکاح پڑھوا لیا اور تو اور اس کے نانا جان بھی آ گئے. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ زمین آسمان ایک کر دیں گے مگر وہ تو بڑے آرام سے شریک ہو گئے. یہ سب کے سب پاگل ہیں. خالد، دنیا میں بہت سی بعید خیاس باتیں ہوتی، یہ بھی انہیں میں سے ایک. مگر شہزاد اب کیا ہوگا؟ کچھ سوچا تو؟ میں کیوں سوچوں اور کیا سوچوں؟ مجھ سے کیا مطلب؟ میں کچھ نہیں جانتا سارے قصے کے بارے میں. مگر شہزاد پلیز خالد، میں بہت تھکا ہوا، آرام کرنا چاہتا ہوں. میرا سے کوئی تعلق نہیں اور نہ مجھے اس کی پرواہ ہے. ہمارے خاندان میں پشت تھا، پشت سے چلی آ رہی ہے. میرے دادا کے پردادا نے پہلی بار اسے اپنی بیوی کو دیا تھا. تو شہنشاہ جہانگیر کے زمانے کی بنی ہے. سنا تو یہ بھی ہے کہ ملکہ نور جہاں کا دل بھی اس پر آ گیا تھا. اگر دیکھو تو صحیح کس قدر خوبصورت. جی بہت خوبصورت ہے. وہ 20 سال سے لاکر میں بند پڑی ہے لیکن ذرا بھی جو اس کی آب و تاب میں فرق آیا. آج صبح میں ایسے خود نکال کر لایا ہوں تمہیں دینے کے لیے. جی
क्या करने के लिए? तो तुम्हारे लिए। मेरे लिए? आखिरी बार इसे मेरी बहू ने पहना था और अब तुम पहनोगी। ये तो एक तरह से अमानत है तुम्हारे पास अगली पुश्तों की। मगर ये मैं कैसे ले सकती हूँ? ये तो औरतों की खानदानी अंगूठी ना, मैं इसका क्या करूंगी? तभी तो तुम्हें दे रहा हूँ। आमिर से निकाह करने के बाद अब तो तुम इसकी हकदार हो। आमिर से निकाह करने के बाद? मगर ये तो मेरा मतलब है कि इससे क्या होता है? ये अंगूठी मैं नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं। तो वही बात, तो बेवकूफी की बातें क्यों कर रही हो? अब तो तुम इस खानदान की बहू हो, ये इसे अपने पास रखो। और बाकी जितने जेवरात तुम्हें विरासत में मिले हैं वो इस वक्त सब लॉकर में बंद हैं। उनकी चाबी शहजाद के पास है, वो भी अब तुम्हारे पास रहेगी, समझी? मुझे जेवर पहनने का बिल्कुल शौक नहीं है शोएब अंकल, प्लीज आप मुझे मत दें। लड़की, तुम्हें फजूल बातें करने की बहुत ज्यादा आदत हो गई, अब तुम्हें ये आदत भी छोड़ना पड़ेगी, समझी? इसे अपने पास ही रखना आप तो। हाँ, वो शहजाद तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें कई कागजात पर दस्तखत करना है, जाओ उससे मिलाओ। अच्छा हाँ सुनो, मैं चाहता हूं कि घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हें सौंप दूं। मेरा ख्याल है कि तुमने जो अपने नानजान घर का इंतजाम संभाला है, उसके बाद तुम लाजवाब तरीके से अखराजात पर कंट्रोल कर सकती हो। मुझे वो तरीका बहुत पसंद आया। तो क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी लग रही? जी वो नानाजान ने कहा था कि मुझे अब घर आ जाना चाहिए, मैं जाऊँ? तुम्हारे नानाजान से तो आज सुबह भी मेरी बात हुई थी, वो तुम्हें बुलाने के लिए किसी को भेज रहे थे, मैंने मना कर दिया कि अभी तो तुमसे लोग मिलने आएंगे, तुम्हें मुबारकबाद देने आएंगे, इसलिए तुम्हारी मौजूदगी बहुत जरूरी है। ये सब भी होगा? आखिर ये सारी खुराफात भी तो शादी का एक हिस्सा होती है। मगर ये शादी तो, मेरा मतलब है शोएब अंकल, मैं अब घर जाऊंगी। 1-2 हफ्ते बाद चली जाना। मैंने तुम्हारे नानजान को बिल्कुल इत्मीनान दिला दिया है, हालांकि उस शख्स को इत्मीनान दिलाना खासा मुश्किल काम है। अच्छा जाओ, तुम शहजाद के पास जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मगर मैं क्यों करूं दस्तखत इन कागजात पर? और मेरा क्या ताल्लुक है इनसे? आपको जो ताल्लुक है वो आपको मालूम है। मुझे कुछ नहीं मालूम और ना मैं करूंगी। शोएब अंकल का हुक्म है, और यूं भी इन कागजात पर मिसेस आमिर के साइन होने बहुत जरूरी है। मैं मिसेस आमिर वामिर बिल्कुल नहीं, और आप सब कुछ जानते बूझते फजूल बातें कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए कि मुझे इन पर साइन करना चाहिए। और आप मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हैं? मैं गलत नहीं कह रही हूँ। इसमें गलती क्या है? ठीक है, अगर गलती मेरी है तो थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाएगी, सारा चक्कर ही खत्म हो जाएगा। बस फिर मैं ये सब क्यों करूं? ये उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मगर ये हकीकत नहीं है। ये हकीकत है। आपको मुझसे क्या दुश्मनी है? मैंने आपको तो कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ साइन कीजिए, मुझे एक कागजात आज ही जमा कराना। मैं नहीं करूंगी साइन, इसलिए कि अगर मैंने एक दफा साइन कर दिए तो आइंदा क्या होगा? जब आपने जिंदगी के अहम तरीन कागजात पर बगैर सोचे समझे दस्तखत कर दिए तो इन पर साइन करने से क्या इनकार है आपको? वो मैंने दिल से तो नहीं किए थे। अब मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ नाम की शादी है। मैंने खुद कहा था कि बाद में इसे खत्म कर दी। जो बातें तहरीर में आ जाती हैं वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। अब आप उन अल्फाज की पाबंद हैं जिन पर आपने दस्तखत किए थे। मैं किसी एक लफ्ज की पाबंद नहीं हूँ, समझे आप? ये भूल है आपकी, ये बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल नामुमकिन है तो थोड़े दिनों के बाद आपको इस बात का पता चलेगा। इससे पहले भी मुझे बहुत सी बातें पता चल चुकी हैं और मजीद कुछ जानने की कोई ख्वाहिश मेरे दिल में नहीं है। आप इतने बेहिस क्यों हैं? कोई एतराज क्या? मेरी बेहिसी ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आप हमारा हेल्प कर सकता? हाँ कबाब थैंक यू ना मांगता। हाँ हाँ कहो। शेर साहब हमारे को बोला कस्टर्ड बनाओ,
आप कस्टर्ड बना सकता? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आता बनाना। नहीं बना सकता? लेकिन तानिया, हम कस्टर्ड बनाया, आप जरा प्लीज इसको टेस्ट कर लो। अच्छा बना लिया तुमने, फिर क्या है, ले जाओ। नो तानिया, हमारे को डाउट है, इट्स नॉट राइट, इट्स परफेक्ट, जाओ ले जाओ। लेकिन तानिया, अच्छा है तो आप टेस्ट करना नहीं मांगता? भाई शक्ल से अच्छा लग रहा है तो टेस्ट करने की क्या जरूरत है, जाओ। थैंक यू वेरी मच मिस तानिया, अभी हम जाना मांगता। अरे आओ शैला, मैं आपको मुबारकबाद देने आई थी। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक है? हाँ। अच्छा, आओ बैठो तो सही। मुझे तो कल रात ही पता चला था। और सुनाओ क्या हाल है? आप सुनाए। आमिर कब आ रहे हैं? तुम थी कहाँ इतने दिनों से? यही थी। आप भी तो मसरूफ होंगी उनके ख्यालों में। मैं तो खैर क्या मसरूफ होती, तुम अपनी मसरूफियत बताओ। और हाँ, खालिद बता रहे थे कि वो कई दफा तुम्हारी तरफ गए लेकिन तुम मिली नहीं। हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सर में दर्द था, मम्मी ने कहा था आराम कर लो। अब ठीक हो? बिल्कुल ठीक ही तो हूँ, तभी तो आ गई हूँ मिठाई खाने। सच मुझे बड़ी खुशी हुई आपके निकाह की खबर सुनकर। अच्छा, और सब लोग ठीक है? हाँ सब ठीक है। अच्छा वो तुम आ गई, मैं सोच रही थी कोई आए तो मैं चाय मंगवाती। अरे भाई तकलीफ ना करो ना। सुना है कि शोएब अंकल कुछ बीमार थे। शोएब अंकल? हाँ। नहीं तो पता नहीं, कोई कह रहा था कि नर्स रखी गई है उनके लिए। हाँ मगर नर्स तो मेरे आने से भी बहुत पहले से है। पता नहीं क्या बात है, नर्सों से बड़ी घबराहट होती है। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी और बहुत स्वीट सी लड़की है, बहुत सीधी सादी। अच्छा, खैर मैं तुम्हें भी मिलवाती हूँ। अरे भाई नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। वैसे ये कब तक रहेगी यहाँ? पता नहीं, शोएब अंकल की मर्जी है, काफी डिपेंड करते हैं उसके ऊपर। हेलो 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 हेलो, यह एक मुझ पे इस हकीकत का इंकशाफ हुआ है कि बाहर आई हुई भाई फूल पत्ते किस कदर खुशनुमा लग रहे हैं। आसमान पर अब्र रहमत की फौजें जमा है। ओह शैला भी है यहाँ पे। मैं माफ करना। हाँ कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। तो सर इतने दिनों बाद देखा, पहचान ही नहीं सका मैं। तानिया प्लीज मैं अब चलती हूँ, मम्मी नाराज हो रही होगी। तो टेलीफोन कर दो। भाई ये आला इसी किस्म के मौकों के लिए इजाद हुआ था। और तुम अभी तो आई हो, थोड़ी देर तो ठहरो। हाँ अभी जी कहाँ भरा, मेरा मतलब है अभी जी कहाँ भरा होगा तुम लोगों का आपस में? कुछ मेहमान आने वाले हैं। अरे मेहमानों को मारो गोली, आने जाने वाली चीज है। तानिया प्लीज मैं अब चलती हूँ। ठहरो तो सही, अभी तो तुम्हें मिस डिसूजा से भी तो मिलवाना है ना। मिस डिसूजा? क्या खुदा न खास्ता दुश्मनों की तबीयत कुछ नासाज है? शैला मुझसे मिस डिसूजा के बारे में पूछ रही थी कि कैसी नर्स है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा नर्स, आपको नर्स के बारे में किसी ने बताया होगा, आप यकीनन उसके बारे में जानना चाहती होंगी। जी नहीं, मुझे नर्स के मौजूद से कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा दिलचस्पी नहीं? हालांकि दिलचस्पी होनी चाहिए। तो नर्स तो हमारे मुआशरे का सतून होती है, और खुलूस और हमदर्द। और फिर ये मिस डिसूजा, ये तो हाय माय गॉड क्या हमारा मदद करेगा? हमारा मदद करेगा? वो हमारे को जिंदा नहीं छोड़ा मांगता, वो बहुत गुस्से में वो हमारे को बोला कस्टर्ड बना के लाओ, हम कस्टर्ड बना के ले गया, वो कस्टर्ड हमारे ऊपर मार दिया। थैंक यू। अबे हम क्या करता, देखो चीनी की जगह थोड़ा सोडा डल गया, एक माफक बोतल था ना, वो बोलते गाय भैंस का तुमने खाना बनाया। या अल्लाह, चले छोड़े, कोई बात नहीं। अभी छोड़ेगा क्या मिस तानिया? 2 चम्मच खाया, देन उसके बाद पागल होना मांगता। कस्टर्ड खा के? यस, पहली दफा सुना। हम बनाया था ना। हाँ फिर ठीक है, मेरा मतलब इसमें सोडे का कसूर हुआ, आपका तो कोई कसूर नहीं ना। शैला इनसे मिलो, ये है मिस डिसूजा, और मिस डिसूजा ये शैला है। इन्हें आपसे मिलने का शदीद इश्तियाक। हाय स्वीटी, हाउ आर यू?
आज से मिलकर बड़ा खुशी हुआ। मुझे भी खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी। आओ मैं तुम्हें छोड़ा। तानिया तुम इन्हें तसल्ली दिलाता दो, जरा इनका मुंह हाथ में। आप जाना मांगता फिलहाल आइए चले। जी नहीं शुक्रिया, मैं खुद भी जा सकती हूँ। हम समझा शेर साहब आ गया। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आया हूँ। मैं पता है मैं आपको ढूंढ रहा था, फिर मुझे असलम ने बताया आप यहाँ हैं और शुएब अंकल बिल्कुल नहीं। मैं आ गया। थैंक यू, आप बहुत स्वीट है। जी वो पता है मैं तो आपको एक बात बताने के लिए आया था, आपको सुन के खुशी होगी। हाँ तो फिर जल्दी बताओ ना, जल्दी जल्दी। पता है आपको ये जान के खुशी होगी कि अब मैं यहीं रहूंगा। नो नो नेवर मैन, कैसा बात करता? ये सब गड़बड़ करना मांगता है, ऐसा बात नहीं करता। आप बात नहीं समझ रही, वो दरअसल मैं इस घर से नहीं जा रहा हूँ। क्या करना मांगता है? तो कपड़ा कोट खराब करना मांगता, ऐसा नहीं करता। अच्छा ये खुशी का बात है कि तुम इस घर में रहना मांगता। पता है वो मिस तानिया है ना, मिस तानिया, उन्होंने मम्मी को रोक लिया, वरना मम्मी तो कयामत तक नहीं रुकी। आपको पता है अब मुझे उनके साथ जाना ही पड़ता। तानिया बहुत स्वीट है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। हम थोड़ा मोटा है। थोड़ा मोटा? कमाल कर रही हैं आप तो बिल्कुल भी मोटी नहीं है। आपको ये किसने कह दिया? पता है मुझे आप कैसी लगती है? तितली की तरह लगती है, तितली की तरह। थैंक यू वेरी मच। पता है आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए तो मैं इस घर से नहीं जा रहा हूँ। आपसे बातें कौन करता है? आपको मेरी बातें पसंद है? हम आपका बात बहुत पसंद करता, बाद में हम देर तक एंजॉय करता। अच्छा देखिए मैं, अरे ये देखिए ये कोट, इतने सारे कोट हैं, इतने अच्छे अच्छे कोट हैं, इतनी अच्छी अच्छी टाइयां इनके पास। मैं एक बात बताऊं, ये मैं टाई पहनना चाह रहा हूँ, पहन लो। नो 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 नो, क्या करता? मैं नहीं करो, शेर साहब गड़बड़ करना मांगता। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी मम्मी जो है ना मुझे टाइयां खरीद के नहीं देती ना, अच्छे अच्छे कोट खरीद के देती है। प्लीज एक सेकंड के लिए रुक जाइए। वो बात ये आप बड़ी स्वीट है। हम स्वीट है। ओके जल्दी जल्दी करो। एक सेकंड ये नहीं करेगा? हाँ ये कोट पहनूंगा। अब देखें तो हाथ बार हो गया। वैसे एक बात बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ? वेरी फाइन। वेरी फाइन। पता है मेरी मम्मी क्या कहती है? मेरी मम्मी कहती है कि तुम्हें नजर जल्दी लग जाती है, इसलिए बेटा नजर बट्टू लगा लिया करो। नहीं वो हाँ उसको कहते हैं, वो नजर का एक टीका होता है हमारे यहाँ। इंजेक्शन? नो नॉट इंजेक्शन। इनको कहते हैं फूल। मेरा कोट, मेरी टाई, मैं तुम दोनों को गोली से मार डालूंगा। अंकल एक सेकंड, गोली मारने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। वो मैं तो इनको एक बात बताने आया था कि वो ये क्या अंकल? उतारो ये सब है, उतारो। मगर शायद ये बेहोश हो गई हैं। मैं कह रहा हूँ उतारो। लेकिन इनका क्या होगा? इसका असर तो तुमसे भी बुरा होगा। मगर अंकल इनका कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल इनका कसूर नहीं है। अच्छा निकलो बाहर, यहाँ से निकलो। लेकिन इनको होश में कौन लाएगा? है कौन लाएगा इनको होश में? कह रहा हूँ तुम बाहर निकलो, इसकी खैरियत इसी में है कि ये बेहोश रहे। अच्छा मैं एक गिलास पानी ला देता हूँ, ठीक है? बता जाने तुम्हारी अम्मा तुम्हें खुला क्यों छोड़ देती है? तुम्हें तो रस्सी बांध के रखना चाहिए। बेहतर यही होगा कि वो गिल्टी प्लीज करे। वरना हेलो हेलो तानिया, मैं आज खासतौर पर तुमसे मिलने
ये तोहफा मैं नहीं ले सकती। और क्यों लूं? क्यों? लेने में क्या हर्ज? ये सब गलत है, इन्होंने कुछ और समझ कर दिया है। मगर आप तो सब कुछ जानते थे, आप उन्हें टाल सकते थे, मना कर सकते थे। तो मेरे जाने न जाने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बहुत सी बातें जानता हूँ, लेकिन मैं एक को तो नहीं बता सकता। ठीक है, ये तोहफा आप उन्हें वापस कर दीजिए। क्या कह कर वापस करूं ये तोहफा में? कुछ भी कह दीजिए, आपकी तो उनसे इतनी दोस्ती है। आपको दिल चाहे तो आप इस तोहफे को लीजिए या ना लीजिए, लेकिन इतना अर्ज कर दूं कि ये तोहफा उसी खेल का एक हिस्सा है जो आपने शुरू किया। जब खेल शुरू किया है तो इसे पूरा कीजिए। अगर आप इस तोहफे को वापस नहीं कर सकते तो फेंक दीजिए। आपके नजदीक तोहफों की यही कदर होती है क्या? और अगर आप इस मखसूस तोहफे को अपने पास हिफाजत से रखना चाहते हैं तो रखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। तोहफे तो वापस भी किए जा सकते हैं और फेंके भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको न वापस किया जा सकता है न फेंका जा सकता है। उनके बारे में कुछ सोचा है? मैंने बड़ी तरकीबें की, अजीब अजीब हरकतें की कि अपनी तकदीर के उलझे हुए धागों को सुलझाकर एक सीधा साधा खूबसूरत सा नमूना खुद ही बुन लो। मगर ये कमबख्त किसी सूरत न सुलझे और उलझते चले गए, सिरा ही न मिला। शायद इनका कोई सिरा ही न है। प्लीज श्वेता साहब आपको बुलाता, वेरी अर्जेंट, अर्ली, प्लीज करो। क्या बात? उन पर दौरा पड़ता, ब्लड प्रेशर हाई होना मांगता, तभी ठीक नहीं होता। प्लीज कम ऑन। माय गॉड, मैं आ रही, डॉक्टर आ गए? नो नो नो, वो डॉक्टर नहीं मांगता, आपको मांगता। प्लीज हरी अप, प्लीज प्लीज कम ऑन। उस नर्स से कहो कि आकर ले जाए, मुझे नहीं चाहिए। आखिर वो समझती क्या है कि ये पाव भर दूध मेरी जिंदगी बचा देगा? खबरदार जो उसने अपने हलक में डाला। शेर अंकल, आपकी तबीयत अब यकीनन खराब हो जाएगी, लिहाजा प्लीज आप। तो क्या मतलब है तुम्हारा? अब मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इस उम्र में इस कमजोरी में इतने बड़े बड़े शौक बर्दाश्त कर सकता हूँ? माय गॉड, मेरा ख्याल है मैं मिस डिसूजा को बुला के लाता हूँ, आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लें। हाई हो गया होगा। हाई? भैया मेरा ब्लड प्रेशर इस वक्त आसमान से बातें कर रहा है। मगर शोएब अंकल, आपने मुझे क्यों बुलाया था? बात क्या है? ये बिल देख रही हो तुम? तो दिखाओ तो सही से बिल। जरा दो इसके सारे बिल। जी देख रही हूँ। नहीं, आप गालिबन समझ नहीं रही। ये वो बिल हैं जो मुख्तलिफ दुकानदारों ने भेजे हैं शोएब अंकल को अदा करने। और जरा बताओ तो सही इस लड़की को कि कुल रकम कितनी बनती है? ये बेटे, मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरा क्या वास्ता है इनसे? हाँ, आपका वास्ता महज इत्तफाक के तौर पर सब चीजों से हो जाता है। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि एक लड़की तनहा इतना ज्यादा खर्च कर देगी। एक लड़की तनहा बहुत कुछ कर सकती है शोएब अंकल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मगर ये तो इंतहा है। करेक्शन शोएब अंकल, ये इब्तिदा है। ये मैं अपने तजर्बे की बिना पर कह रहा हूँ। ये बिल देखे तुमने? जी देख रही हूँ, मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब आखिर तुमने खर्च नहीं किया है? तो मैंने अपने ऊपर तो नहीं खर्च किया ना, आपके घर पे खर्च किया है। अब किसने कहा था तुमसे कि इस वाहियात घर पर इतना ज्यादा खर्च कर दो? मुझे क्या पता था कि आपको ये घर पसंद नहीं है? आप मुझे पहले बता देते। और सारा इंतजाम खुद ही तो आपने दिया था मुझे। बुनियादी बात यही है शोएब अंकल, इंतजाम तो तुम्हारे हाथ में इसलिए दिया गया था कि तुमने जो अपने नाना जान के घर का नक्शा खींचा था वो कमाल का था। तो तुमने तो कहा था कि वहाँ 1 रुपया खर्च करने से पहले 3 बार हिसाब किया जाता है। सुन तुम 3 बार। आखिर वो सारी एहतियातें कहाँ गायब हो गई हैं? और मुझे अच्छी तरह याद है तुमने ये भी कहा था कि वहाँ 9 बजे के बाद सारी बत्तियां बुझ जाती हैं, टेलीविजन पर ताला पड़ा रहता है, टेलीफोन पर सख्त पाबंदी है, अखबार सिर्फ जुमे के रोज आता है। ये सब कुछ इन्होंने कहा था आपसे? ये तो कई साल से उस घर का इंतजाम खुश उसलूबी से चला रही थी। जी हाँ, कई साल से इनके नाना जान को भी दिल के दौरे बराबर पड़ रहे हैं। 2-4 और इसी किस्म के शौक मुझे मिल गए तो समझ लो मेरा भी खात्मा हुआ। मैं समझी थी आप खुश होंगे मैंने आपका घर ठीक करवा दिया,
लॉन तो बिल्कुल बर्बाद हो रहा था, गमले टूटे फूटे पड़े थे, बस ये 2-4 चीजें मैंने ठीक करवाई हैं। वैसे शोभन अंकल इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ किया गया है निहायत नेक नियति के साथ किया गया। लॉन से तुम्हें क्या करना था? क्रिकेट खेलनी थी तुम्हें, हैं? लड़की तुम 1-2 दिन के अंदर अंदर सारे घर को लुटा दोगी। इसमें लुटने को रखा क्या है? लुटने को? तुम अपने नाना जान के घर ये सारी हरकतें कर सकती थी, हैं? बोलो बोलो। जी नहीं, मेरे नाना जान का दिल बहुत कमजोर है। मेरा दिल भी बहुत कमजोर है, समझी? तो आप मुझे पहले बताते ना ये बात। मेरा ख्याल ये शोएब अंकल कि हमें अपनी अपनी कमजोरियां इनको लिख कर दे देनी चाहिए, न जाने भूल चूक में और कुछ टूट फूक जाए। आपका क्या नुकसान कर दिया मैंने? मुझे अपने नुकसान की तलाफी करवानी आती है। आप चुप रहें बिल्कुल। खुदा के बाद से तुम इसे भी अपना ही घर समझो, क्यों मेरी जान की दुश्मन बन गई? मैं इतने सारे सदमे बैक वक्त नहीं बर्दाश्त कर सकता। यार शहजाद, तुम्हारे ऑफिस में कुछ चाय पानी वगैरह का इंतजाम नहीं? 10 घंटे हो गए, वो बनता है खुदा अभी तक नहीं लौटा। आ जाए क्या? भाई साहब, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि इस किस्म की बेकार चीजों के इंतजार में गुजारूं। अगर इंसान को इंतजार करना ही है तो किसी अच्छी सी चीज का करे, तो कम से कम शहनाइयां तो बजती रहे कानों में, बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर। बेकार अपनी मुस्कुराहट जाया कर रहे हो। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है घायल होने वाला। हेलो हेलो शहजाद, कानूनी तौर पर घायल होने में तो बाकायदा स्टाम्प पेपर पर लिखा पड़ी होती होगी। घायल होने से तुम्हारा मतलब जख्मी होने से है? इसे छोड़िए, बताइए कानून में तीरे नजर का शिकार करने वालों की क्या सजा है? कानून में इस किस्म की हिमाकतें नहीं होती। क्या मतलब है? तीरे नजर नहीं होता आप लोगों में? हम लोग इन फजूलियात पर यकीन नहीं रखते। माय गॉड, किस कदर रेगिस्तानी जिंदगी है भैया तुम लोगों की। तुमने खाना खाया? नहीं। चलो खालिद, तुम भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे तो अभी घर जाना है, तानिया इंतजार करेगी। क्यों शहजाद, बुकिंग करवा दो उसकी? उससे मालूम किया तुमने? शोएब अंकल से पूछा? शोएब अंकल तो अभी मना कर रहे हैं। वक्त मेरे से 2-4 रोज और रुकना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है? यार, इंसानी मजबूरियों को इतनी सख्ती से नहीं जांचना चाहिए। कुछ इन हालात में रही है वो इससे भी ज्यादा बिगड़ सकती थी। हाँ, मेरे से कोई वास्ता नहीं है मेरा। बहरहाल तुम घर जरा जल्दी आ जाना, मुझे शायद तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। अच्छा ओके, जरा तुम भी जरा घर आना, तफसील से बातें होंगी, जरा कानूनी किस्म की तफरीह रहेगी, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। तानिया किस किस्म की लड़की है? ठीक। क्यों? कुछ मुख्तलिफ लगती है। मेरा मतलब है कि हमारे घरानों में ऐसी लड़कियां इस तरह तो बिहेव नहीं करती जैसे वो करती है। अजीब सा अंदाज है, कुछ गैर मुनासिब सा। चल देर हो जाएगी। मैंने सुना था वो यहाँ अकेली आ गई थी। तुम्हारे बाबा के पास आई थी जिन्हें वो बचपन से जानती थी। ये कोई गैर मुनासिब बात नहीं है। मगर बाबा मौजूद नहीं थे तो वो तुम्हारे यहाँ ही रही, तो ये तो गैर मुनासिब बात है। मेरे नहीं रह पड़ी, बल्कि शोएब अंकल ने उसे यहाँ रख लिया। यूं भी मैं उन लोगों का वकील हूँ और उनका गार्जियन भी। हाँ, अब उसका निकाह हो गया है यहीं रहते हुए। मेरा ख्याल है तुम्हें दूसरों के मामलात में इतनी कुरेद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी गैर मुनासिब बात है। आप चलिए। तुम इस मौजू पर बात नहीं करना चाहते? नहीं। जी हाँ तानिया, तो दरअसल मैं आखिर आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा कि मेरे सर में शदीद दर्द था 2 दिन से, इसलिए मैं कमरे से बाहर नहीं निकली? आपको यकीन है कि यही वजह थी?
आप क्या समझ रहे हैं? हाँ, क्या वजह हो? मैं जो समझ रहा हूँ उस बात को छोड़िए। आपके कमरे से न निकलने की 10,000 वजूहात हो सकती हैं अलावा सर दर्द के। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? माफ कीजिएगा, मेरा ख्याल है कि आपके सर में इतना शदीद दर्द तो नहीं था कि मेरे बार बार बुलाने के बावजूद आप ना आ सकती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो पिछले 3 दिन में इतना तो कर सकती थी कि जाकर शोएब अंकल से उनकी तबीयत पूछती, उनसे कुछ कहती। मैं शोएब अंकल से कुछ कहती? लेकिन हुआ ये कि उन्होंने आपको बुला भेजा और आपने इनकार कर दिया। कमाल कर रहे हैं आप। मैं भला शोएब अंकल के पास कैसे जा सकती थी और क्या कहती? मेरी कभी भी हिम्मत नहीं पड़ सकती। 2 जुमले कह देने में क्या हर्ज था? आप 2 जुमलों की बात करें, मैं 2 लफ्ज नहीं बोल सकती थी, नामुमकिन है मेरे लिए। और असल बात यह कि मैं फेस नहीं कर सकती थी शोएब अंकल को। देखिए तनिया, जिंदगी में अक्सर आदमी ये समझता है कि उसमें फेस करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन उसे फेस करना पड़ता है, करना चाहिए। आखिर मैं क्या क्या फेस करूं? सारे लोग मुझसे ये तवक्को कर रहे हैं कि मैं रोती पीटती फिरूं और जाने क्या क्या करूं। मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, मैं आपको बताए दे रही हूँ। खैर, मैं इस सारे लोगों के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ शोएब अंकल के बारे में बात करने आया हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको उनके पास जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मुझे जाना चाहिए था, कुछ कहना चाहिए था। और आप क्या समझते हैं कि मैं इतनी बेहिस हूँ कि मुझे उनके गम का कोई एहसास ही नहीं है? मुझे बहुत एहसास है, मगर मुझे वो सब कुछ कहना नहीं आता जो इन मौकों पे कहा जाता है। आप सिर्फ इतना नहीं कह सकती थी कि मुझे इस हादसे पर बहुत अफसोस हुआ? जाहिर है मुझे बहुत अफसोस हुआ है, सबको होगा, लेकिन सारे लोग ये क्यों कह रहे हैं कि मैं बेवा हो गई हूँ? और मैं इस तरह से बहस नहीं करने आया, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आपको शोएब अंकल के पास जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। वो आपका कितना ख्याल करते हैं। ठीक है, मैं भी चली जाती हूँ। गुड कर। लेकिन अगर मैंने कोई गलत बात कही ना तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे। एक्सक्यूज मी मिस तानिया, शोएब साहब आपको अंदर बुलाना मांगता। बुला रहे? यस। अच्छा। बात तो यह है तानिया कि इंसान बेवकूफी की हद तक खुशफहम होता है, बड़े बड़े मंसूबे बनाता है इसी यकीन के साथ कि वो हर हाल में अपना मकसद हासिल कर लेगा। लेकिन कभी कभी अल्लाह इंसान को उसकी औकात अच्छी तरह याद दिला देता है। लेकिन इसमें सबसे तकलीफ दे बात तो यह है कि तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। मैं सब कुछ ना करता तो कम से कम तुम तो बची रहती, बल्कि कुछ भी ना होता, कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जो शदीद सान्या आपके ऊपर गुजरा है उसका तस्वुर भी अज़ियतनाक है, लेकिन खुदा की मर्जी के आगे इंसान मजबूर होता है। जिंदगी देने वाला, जिंदगी लेने वाला वही है। हम इस सरमी में आपके बराबर के शरीक हैं। खुदावंद ताला आपको सब्र की तौफीक अता करे और मरहूम को जन्नत नसीब करे, आमीन। बस बस, तुम्हें इतनी कोशिश करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे लड़की, ये बताओ कि ये तुम खुद से कह रही थी या कहीं से लिख कर लाई थी? जी, वो मुझे कुछ कहना नहीं आता। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आखिर तुमसे किस अहमक ने कहा था कि इतनी लंबी चौड़ी तकरीर लिख कर लाओ? है? अच्छा भागो यहाँ से, मुझे कुछ देर आराम करना है। मैं तुम्हें सलाह से ये बताने आया था कि कुछ खवातीन आंखें आई हैं। मेरे पास? मैं क्यों? क्यों? वो शोएब अंकल के पास अफसोस करने के लिए जा रही थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आपकी बात आएंगी? यानी
मिसेस आमिर, लेकिन अब तो वो भी नहीं। अब मैं आपको क्या कहूँ? क्यों? मेरे सर पे कोई सींग निकला है कि मुझे कोई और नाम दिया जाएगा? वो पता नहीं, खैर आप ये रहने दीजिए। वो मैं आपसे 2-3 दिन से एक बात कहना। मत कहिए, कुछ मत कहूँ, एक लफ्ज नहीं। मगर देखिए मैंने सारे जुमले याद कर लिए तो। ओह नो, ओह माय गॉड। गुलजार साहब, मुझे भी वो सारे जुमले आते हैं, इसलिए प्लीज आप रहने दीजिए। देखिए मगर मैं क्या करूँगा, मैंने इतनी मेहनत से याद किया, मैं किसको सुनाऊँ? आप ऐसा करें कि अपनी मम्मी को सुना दें। ठीक है, मैं मम्मी को भी जाकर सुना देता हूँ। लो मम्मी, अच्छा वो आप यहाँ आ गई, वो ये कह रही है कि मैं आप ही को सुना दूँ। क्या सुना दूँ? वो अल्लाह ताला की यही मर्जी थी, मौत हर इंसान को आती है। गुलजार जी तुम जाओ, मुझे तानिया से कुछ बातें करनी है। ठीक है, मैं जाके मिसेस को सुना देता हूँ। जाओ। तानिया, कुछ खवातीन तुमसे मिलने आई हैं। मेरे पास क्यों आई हैं? इसलिए कि आमिर तुम्हारा शौहर था और तुम उसकी बेवा हो। मैं कोई बेवा वेवा नहीं हूँ, और आप बराए मेहरबानी मुझे बार बार मत कहें। तुम बराए मेहरबानी ये चूड़ियां और अंगूठियां वगैरह उन खवातीन के आने से पहले उतार दो, समझे? क्यों क्यों उतार दो? इसलिए कि लोग इतराज करेंगे। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि ये मुनासिब नहीं। मैं आपसे पहले दिन से ये कह रही हूँ कि मैं इन सारी फजूल बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती, और ना मेरा इनसे कोई ताल्लुक है। मत रो मेरी जान, मत रो, तबीयत खराब हो जाएगी। कब रो रही हूँ? बेचारी बच्ची, अभी इसकी उम्र क्या है? इस उम्र में बेवगी का दाग अल्लाह दुश्मन को भी न दे। कैसा अंधेर हुआ है, पहाड़ ऐसी जिंदगी कैसे गुजरेगी? ये गुजर जाएगी। अरे आप लोग बैठे तो सही। हाँ बहन बैठो बैठो, आओ बीबी आओ बैठो। फजीलत, बच्ची की चूड़ियां तो उतार दो। सफेद दुपट्टा उड़ाओ इसे। फजीलत, तुम्हें क्या हुआ है? जमाना क्या कहेगा? और क्या, इसे क्या मालूम क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक, मेरे पास तो कोई सफेद दुपट्टा नहीं है, अभी बाजार से जाकर 8-10 ले आती हूँ। और क्या क्या लाऊं? क्या सफेद जूते ही पहन होंगे? नहीं, तुम बाजार में जाना, बिल्कुल तुम बाजार थोड़ी जा सकती हो। फजीलत, बच्ची को क्या मालूम क्या करना है क्या नहीं? ऐ फजीलत, तुम ही कुछ बताओ इसे, कैसी मासूम बच्ची है। बताती तो हूँ मगर ये समझती नहीं। मेरा मतलब है भला इसकी समझ में क्या आएगा? जाहिर है। लाओ बेटी, लाओ, मैं तुम्हारी चूड़ियां उतार। नहीं, ये चूड़ियां मैं नहीं उतार सकती। दरअसल ये पड़ी हुई चूड़ियां हैं, पीर साहब ने दी थी बीमारी के लिए। अल्लाह रहम करे बेटी, सब्र करो। हाय हाय, क्या क्या अरमान होंगे बच्ची के दिल में। अभी तो दुल्हन में नहीं बनी थी। जी नहीं, मुझे कोई अरमान नहीं था इस किस्म का फजूल। गरीब का क्या हाल हुआ है, अपने हवासों में नहीं है। ए बहन, रो रो के ये हाल हुआ है, मगर ये तो सारी उम्र का रोना है। जी नहीं, ना मैं अब रो रही हूँ ना सारी उम्र रोऊंगी। दिमाग पे बुरा असर हो गया है। हाय, तुमने देखा इसे होश ही नहीं, इसके साथ क्या हो गया है? ए बहन, इसे किसी डॉक्टर को दिखाओ, मैं जानू सकता हो गया है, किसी सूरत इसे रुलवा दो। यही हाल रहा तो जान से जाएगी। देखो तो कुछ होश ही नहीं है। जी, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप लोगों से बगैर बहस किए चुपचाप उनकी बातें सुन लिया करें? फजीलत आपा ने शिकायत की होगी। फजीलत आपा ने मुझे आपके रवैये के बारे में बताया, जो आपको गलत लगा होगा। मुझे गलत लगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ, जिस तरह भी हुआ, उसके बारे में लोग तो नहीं जानते। वो तो अपने ख्याल से हमदर्दी करने आते हैं आपके पास, चाहे आप पसंद करें या ना पसंद करें। एक बात मुझे आप बताएं, मैं बेवा हूँ, सब लोगों ने मुझे पागल बना दिया। अगर मुझे शोएब अंकल का ख्याल न होता तो मैं हरगिज़ यहाँ नहीं रहती, कब की अपने घर चली गई होती। मगर मैंने सोचा कि ये इस वक्त बुरी बात होगी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, इसलिए कि शोएब अंकल को आपकी वजह से बड़ी ढारस है। ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल खामखा में बेवा बन जाऊँ, सफेद कपड़े पहन लूँ। वो सब मुझसे यही चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं क़यामत तक की सारी फजूल हरकतें नहीं कर सकती। क्यों करूं आखिर? इसलिए कि बुनियादी गलती आपकी है। आप क्या चाहते हैं कि मैं सारी उम्र इसी तरह रहूं? अरे नहीं, मैं ये नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। अलबत्ता मैं इतना जरूर चाहता हूं कि आप कुछ दिन शोएब अंकल की खातिर ये बातें बर्दाश्त कर लें। ये देखिए ना तानिया,
आमिर से निकाह आपकी मर्जी के मुताबिक हुआ था, बावजूद चंद लोगों की शदीद मुखालफत की। ऐसे तो आप इनकार नहीं कर सकती या कर सकती? ऐसे तो बेहतर था कि मैं मर जाती। ये क्या हो रहा है? उस बेवफा के मोहब्बत नामे जला रहा हूँ। बिजली का बिल कहाँ से आ गया? खालिद, बराए मेहरबानी इस वक्त मुझसे बात करने की कोशिश न करना, मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो रहा है। वो तो मुझे नजर आ रहा है, मगर हुआ क्या है? इस वक्त आतिश फिशा और मुझ में कोई फर्क नहीं है। खालिद प्लीज ये रख दे, ये बहुत महंगे, शोएब अंकल बहुत खफा होंगे। मुझे किसी की खफके की कोई परवाह नहीं, सिर्फ लोगों को मेरी परवाह नहीं है। सब खुदा का तोहफे मैं देता रहा, मंगनी कोई और कर रहा है। किसकी बात है ये? शैला की? नाम ना लो उसका मेरे सामने। उसने बेवफाई की हद कर दी, जुमे को मंगनी कर रही है। मगर शैला तो गालिबन तुमको पसंद करती थी। इस गालिबन में उन्होंने 10-5 और लड़के भी स्टैंड बाय कर रखे थे। तुम्हें यकीन है ये खबर सही है? मुझे यकीन नहीं है। उनकी मम्मी ने मुझे खुद बताया है। ऐसे तो उनका मुंह मुझे देख के 2.5 मन का फूल जाता था, मगर आज मुस्कुरा मुस्कुरा के खबर सुना रही थी। खुदा समझे उन्हें। किससे हो रही मंगनी? उसी खबीस आसिफ से। काश मैं गोली मार देता शैला को। खैर मैं इतना बेवफा भी नहीं, मगर तुम देख लेना इस मंगनी पे बड़ा खून खराबा होगा, लाशें उठेंगी उसी आसिफ की। ये बताओ कि तुम शैला से मिले? ताज़ियत करने के लिए माँ भी चाहता हूँ। ओहो भाई मिलकर तो देखो, हो सकता है बेचारी मजबूर हो गई हो। कैसे मिलो? ख्वाब में? जीते जागते मिलना नामुमकिन है। अरे उसकी मम्मी तो मुझे देख के यूं मुंह बनाती है जैसे सालन में नमक ज्यादा हो गया। वो मुझे मिलने देंगी? हालांकि उन्हें भी तोहफे दे चुका हूँ, एक दफा दिया था। ठीक है तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। अब मुझसे बात करती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस मुझे एक बार उससे मिलवा दो, आखिरी बार उसकी सूरत देख लो, आखिरी बार उसकी खूबसूरत आवाज सुन लो। क्या पता फिर कभी जिंदगी में मुलाकात हो या ना हो। ठीक है ठीक है, अभी मैं उससे बात करती हूँ, ठीक है? मेरा दिल कहता है कि शैला बेवफा नहीं। खैर वो तो दूसरी बात है। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर शोएब अंकल यहाँ से गुजर गए और उनकी नजर इन चीजों पे पड़ी तो शहला और नो शहला तुम बेमौत मारे जाओगे। ओह नो, ओह माय गॉड। हेलो हेलो। हम समझा शेर साहब, उसे शेर साहब नीचे चला गया। शेर साहब नीचे गए? यस। तो बड़ी अच्छी बात है। पता मैं तो खास कर आपके पास आया था खास बात बताने के लिए। हमारे को? क्या बात? जल्दी बोलो। वो बात यह है कि अब मैं शोएब अंकल का जानशीन हो गया हूँ। जानशीन? व्हाट जानशीन? अनिल की जानशीन क्या होता है? जानशीन का मतलब तो मुझे भी नहीं पता। वैसे मम्मी ये कहती है कि अब ये सारी चीजें, ये कमरा, ये मकान, ये मेरा है। क्या? ये सब चीज तुम्हारा हो गया? ओह प्लीज, ग्रेट गॉड, हेल्प हेल्प। आमीन आमीन। ऐसा उल्टा सीधा बात नहीं करो मैन, इसीलिए तो शोएब साहब तुमको डांटता है, लाइक नहीं करना मानता। अरे डांटने की बात नहीं है, मैं सच्ची मुच्ची का जानशीन हो गया हूँ। मोची? सब मोची? मोची नहीं, मेरा मतलब यह है कि मम्मी ये कहती हैं कि जब शोएब अंकल फौत हो जाएंगे ना, आई मीन उनकी डेथ हो जाएगी, तो मैं उनके कमरे में रहूंगा। व्हाट? किस कमरे में रहना मांगता? ओह ग्रेट गॉड, हेल्प हिम। तुम आमीन। प्लीज तुम ऐसा बात नहीं करो, हमारे को लगता है तुम्हारा तबीयत खराब होना मांगता, तुमको बुखार है। अरे मुझे बुखार नहीं है। आप मेरी नब्ज देख लीजिए, है? जरा गौर से देखिएगा। लीजिए सीधे हाथ की नब्ज देखिए। प्लीज, थैंक यू। यस यस। अब आपको जानशीन का काम भी तो करना पड़ेगा ना, है? अब आप शोएब अंकल की तरह मेरा ख्याल रखेंगी। हमारे को लगता है बुखार तुम्हारे दिमाग पे चलना मांगता। यस 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 यस। वो आप मुझे बताइए जानशीन को क्या क्या काम करना पड़ता है? मेरा मतलब मुझे कुछ काम भी करना होगा। मुझे शोएब अंकल के करीब तो नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ये बात पसंद नहीं करेंगे। वैसे तो खैर मैं भी पसंद नहीं करूंगा, ये बात मुझे भी अच्छी लगती। एक्सक्यूज मी प्लीज, ये दवा पी लो। नहीं मिस, मुझे दवा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दवा नहीं पीता हूँ, आपको पता नहीं है। दवा पी लो। ये आप खुश क्यों नहीं हो रही हैं? अब आप हमें दोनों साथ साथ मिलकर काम करेंगे। प्लीज तुम दवा पी लो। दवा पी लूं? यस। मतलब क्यों? अच्छा, क्या जानशीन को दवा पीना पड़ती है? यस एग्जैक्ट। जानशीन को दवा पीना मांगता। और देखो प्लीज इधर
ऐसा ऐसा बात करो प्लीज। ओए प्लीज 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 डोंट डू ईश्वर साहब का प्लीज। शोएब साहब का है तो क्या हो गया, आप जहन नशीन कर लीजिए, मैं शोएब अंकल का जानशीन हूँ। ओके, हाँ शोएब साहब का जानशीन है। मैं तो तबाह बर्बाद हो गया, वो तो कहीं का न रहा। रोज अलग मजाक उड़ाएंगे कि एक लड़की मुझे धोखा दे गई। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें वो आदमी पसंद है जो आदमी की निस्बत गोरीला ज्यादा लगता है? गोरीला तो नहीं लगता। बिल्कुल लगता है, और अगर तुम्हें नहीं लगता ना तो जरूर तुम्हारी आंखों में कुछ खराबी है। मगर आप तो कहते थे कि तुम्हारी आंखें सितारों की तरह जगमगाती हैं। ठीक ही कहता था, लेकिन पास सितारे छोटे भी तो होते हैं ना। मतलब तुमने साइंस से पढ़ी? जी नहीं। तभी क्या तभी? अच्छा इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि तुम वाकई उस शख्स से शादी कर रही? खालिद, अम्मी कहती है कि लड़कियों को माँ बाप की पसंद की शादी करनी चाहिए। अरे गोली मारो मम्मी को, जब देखो बीच में आ जाती है। आखिर वो अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? आप मेरी मम्मी को कुछ नहीं कहेंगे। क्या कहा है मैंने? कुछ भी तो नहीं कहा है। आपने उनको गोली मारने को नहीं कहा। वो तो उसूली बात थी, कोई मैं सच्ची मुच्ची थोड़ी गोली मार रहा हूँ उन्हें। बहरहाल मैं पसंद नहीं करती कि मेरी मम्मी को कुछ कहा जाए। मैं कब पसंद करता हूँ कि उनका नाम तक भी लिया जाए? ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे शैला शैला प्लीज मेरी बात सुनो, तुम उस शख्स से शादी से इनकार कर दो प्लीज, मान जाओ मेरी बात। खालिद, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, ये मेरी निशानी है, इसे हमेशा अपने पास रखिएगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी निशानी, ऐसी 10,000 घड़ियां खरीद सकता हूँ, बल्कि कहो तो एक आध तुम्हारे उस गोरीले को भी ले दूं। बस मैं जा रही हूँ। अरे शैला मेरी बात समझो ना प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जब आपको मेरे तोहफे की नहीं जरूरत तो मेरी जरूरत क्या होगी? आप यही सलूक मेरे साथ भी करेंगे। देख लिया मैंने आपको, मेरी मम्मी आपको बुरी लगती है, आखिर मेरे छोटी हो गई है। बस जाइए, मैं बुरी हूँ, मैंने गलती की जो यहाँ आई थी, खाम इतनी महंगी घड़ी खरीदी। ठीक है दे देना उसे। दे दूंगी, खुदा हाफिज। शैला शैला बात सुनो प्लीज, मुझे माफ कर दो शैला। गॉड क्या हुआ खालिद? शैला ने क्या कहा? नाम न लो उसका मेरे सामने, उसने बेवफाई की हद कर दी। चलो ठीक है फिर, जब उसे तुम्हारी परवाह नहीं है तो ना से जहन्नुम में डालो। प्लीज ऐसा तो मत कहो। या अल्लाह, तो फिर क्या कहूँ? बस मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे मुकद्दर में ये सितारा ही नहीं है। कौन सा सितारा? इस वक्त तुमको कौन सा सितारा नजर आ रहा है? इस शैला की बात कर रहा हूँ। या अल्लाह, बस मेरी किस्मत ही खराब है। अब यहाँ खड़े खड़े तो तुम्हारी किस्मत दुरुस्त हो नहीं सकती। चलो अंदर चलो। मैं कहीं नहीं जाना चाहता, काश मौत इंसान के बस में होती। माशाल्लाह, लोग देखेंगे तो आशीष करेंगे तुम्हारे हौसले पर। क्या मतलब है आपका? बराए मेहरबानी फजीलत आप इस वक्त कोई फजूल किस्म की बात करने की कोशिश ना करें। अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी से कुछ कहने सुनने की? आमिर बेचारा तो अपनी जान से गया, और किसी का क्या नुकसान हुआ? लिप्टन की येलो लेबल, खुशबू के पहले एहसास से तस्कीन के आखिरी घूंट तक अव्वल मेयार, लिप्टन की येलो लेबल। सिंगर डिलक्स वॉशोमैटिक आसान किस्तों पर भी दस्तयाब है। सिंगर की गोल्डन गर्ल, जिप की उम्दा और करीब तरीन सिलाई, ज्यादा नफासत से बटन टांकने, साफ सुथरे काज बनाने और नफीस पीको वर्क के लिए सिंगर की गोल्डन गर्ल जिग जैग सिलाई मशीन। लीक प्रूफ, 16 गेज चादर वाला, मजबूत पायदार सिंगर वाटर हीटर आसान किस्तों पर भी दस्तयाब है।
खालिद, आज उसकी मंगनी है। हाँ मगर तुमको क्या हुआ? काश तुम मेरे दिल में झांक कर देख सकती, इससे भी बुरा हाल है। मेरा मतलब है ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हो? अब जिंदगी में क्या रखा है तानिया? तानिया, तुम मेरा एक काम कर दो। कहो। मेरा ये आखिरी तोहफा शैला तक पहुंचा दो। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है तोहफे भेजने की? सारा कसल खत्म हो गया, लानत भेजो। उनसे कहना कि मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकूंगा, लेकिन वो मुझे भूल जाएं, यही उनके लिए बेहतर है। खालिद, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या फायदा होगा इससे। मुझे सुकून मिलेगा। ओहो, सुकून तुम्हें वैसे भी 2-4 दिन के बाद मिल जाएगा। एक का टेलीफोन आएगा किसी का, या किसी से मुलाकात के बाद। ये मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। होगी, मगर तुम्हारी दरमियान की मोहब्बतें भी काफी हैं। याद तो करो, खाना इतने मायूस हो रहे हो। और मेरी मानो तो ये तोहफा भी किसी बेहतर मोहब्बत के लिए उठा रखो। इसका मतलब है तुम नहीं जाओगी? ठीक है, सारी दुनिया खुदगर्ज है, जिसे दोस्त समझो वो ही धोखा देता है। याद दरअसल मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता था, और सस्पेंस भी, तभी तो मैं तुम्हें यहाँ रोक रहा था। बात यह है कि मैंने वाकई में आमिर को टिकट भिजवा दिया है, और वो अगले हफ्ते आ रहा है। बीमारी का ऐसा चटपटा तार भेजा कि साहबजादे के छक्के छूट गए। असल में तो बात यह है तानिया कि मुझे उस लड़के का कोई भरोसा ना था। वो साल भर तक ना आता तो हम क्या कर लेते। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ भी ज्यादती होगी, आखिर तुम उसका कब तक इंतजार करती। तो इसलिए मैंने इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लिया और उसे टिकट भेज दिया। हालांकि आम हालात में मैं इतना ज्यादा पैसा कभी खर्च नहीं करता। हाँ, मैंने तुम्हारे नाना जान को भी इन्फॉर्म कर दिया। जब आमिर आ जाए तो उसके 1-2 रोज बाद तुम घर चली जाना, बाद में हम तुम्हें ले आएंगे, ठीक है ना? जी नहीं, मैंने अर्ज किया ना कि रॉन्ग नंबर है। जी कल से मैं आपको ढूंढ रही थी। शोएब अंकल ने आमिर को टिकट भेज दिया, वो आ रहे हैं। क्या? आमिर अगले हफ्ते आ रहे हैं, शोएब अंकल ने खुद मुझे बताया है। शोएब अंकल ने मुझे तो नहीं बताया। वो सबको सरप्राइज देना चाह रहे हैं। वाकई? मैं क्या करूं? वैसे ही सबने तो यही कहा था कि आमिर कभी नहीं आएंगे। या उन सब में मैं शामिल नहीं था। लेकिन आमिर ने खुद मुझसे फोन पे कहा था कि वो कभी नहीं आएंगे और ना मुझे बुलाएंगे। बस नाम की शादी होगी, थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाएगी। मैं खुद शोएब अंकल से मालूम करूंगा। इससे क्या होगा, वो मुझे बता चुके हैं, सच कह रहे हैं वो। अच्छा, अब क्या होगा? तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। इसके सिवा और क्या हो सकता है कि आने दीजिए उसे, उससे मिलिए। हो सकता है कि वो इतना बुरा आदमी ना हो। आपका मतलब है कि मैं जी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। सुन ले आप। अभी क्या नहीं हो सकता? कैसे नहीं हो सकता? उसका और आपका निकाह हो चुका है, वो आपका शौहर है, आपको लेने के लिए आ रहा है। जी नहीं। हर दफा इंसान को उसकी हिमाकतों की सजा तवक्को से कहीं ज्यादा ही मिल जाती है। क्या मतलब है आपका? आपने तो अपने ख्याल में सबको बेवकूफ बनाकर अपना मकसद हासिल कर लिया था ना। लेकिन गालिबन आपको यह ख्याल नहीं रहा कि इतने अहम मामलात में बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होता। मैं समझती थी आपको कुछ तो हमदर्दी होगी मुझसे। जी नहीं, मुझे आपसे कोई हमदर्दी नहीं। आपने न सिर्फ अपनी जिंदगी तबाह की है, बल्कि दूसरों को भी उसके लपेट में ले लिया है, जिसका आपको कतई कोई हक नहीं है। और किसी का क्या बिगड़ेगा, खासकर आपका। मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो जाहिर है, फिर आपको क्या फिक्र है? हाँ, से आप परेशान न हो, मैं आपको तबाह नहीं करूंगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस नवाजिश के लिए।
से क्या होगा, बंद करो ये। तो करे मैं मर जाऊं। इससे भी कोई फायदा नहीं होगा, कम से कम तुमको। मैं शुरू से ही बदनसीब हूँ। सब कदम कहते हैं ऐसे लोगों को। इतनी की थी ना तो अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया, कभी नाना ले जाते कभी दादा, किसी को कोई खास मोहब्बत नहीं थी मुझसे, बस इधर उधर थे, मेरा हशर ही बिगड़ गया, दिमाग चल गया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं। अच्छा बाबा, खुदा के वास्ते अब ये दर्दनाक अफसाना बंद कर दो। पता है शुरू में तो मुझे बड़ा मजा आता था ऐसी हरकतें करने का, लोग खफा होते थे ना और मैं बहुत, मुझे मजा आता था, और अब ये मेरी आदत बन गई। बड़ा फायदा हुआ ना तुम्हें अपनी इस आदत का। खैर मैं अगर ऐसी नहीं भी होती ना तो कोई फायदा नहीं था। अच्छा खुदा के लिए मजीद है मकान गुफ्तगू ना करो, मुझ में और ताकत नहीं है, जितनी कर चुकी ना बहुत है मेरी पूरी जिंदगी के लिए। अब मैं क्या करूं? खबरदार, जो तुम रोई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब सोचने तो दो मुझे। अरे तानिया, तुमको सारे घर में ढूंढा जा रहा है और तुम यहाँ हो। जी, कौन ढूंढ रहा है मुझे? भाई साहब ने बुलवाया है, गाड़ी निकलवाई, बाजार लेकर जा रहे हैं तुमको। या अल्लाह, तानिया, ये भी तो हो सकता है कि आमिर इतना बुरा ना हो जितना हम सोच रहे हैं। फिर कभी कभी हमारे अंदाजे भी तो गलत हो जाते हैं ना इंसानों के बारे में। मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मेरा मतलब। हाँ शहजाद, मैं तुम आज दफ्तर ना जाते तो अच्छा होता। तुम्हारे यहाँ रहने से कुछ मॉरल सपोर्ट रहेगी। तुम तो जानते हो कि बाकी सबके सब किसी काम के नहीं। शरंगा, लेकिन काम तो सारे हो गए, यूं भी जहाज रात को 10 बजे आएगा। हाँ, लेकिन फिर भी 10,000 काम हुआ करते हैं। मैं थोड़ी सी देर के लिए दफ्तर जाऊंगा, कल एक मुकदमे की कार्रवाई है, उसकी तैयारी कर। अच्छा, वो तुम मेरे कागजात जरूर लेते आना। मैं चाहता हूँ कि आमिर के आते ही 1-2 रोज बाद सारे काम हो जाए। जी बेहतर। बस तुम्हें क्या तकलीफ उठती है? बोलो। जी वो बावर्ची रात के खाने के लिए पूछ रहा है। अच्छा, बावर्ची से कह दो कि आज रात आदमियों का खाना पकाए। अगर आमिर मियाँ आ रहे हैं और अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसका हश्र बुरा होगा, समझे? जाओ। शहजाद, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं आज ग्रे रंग का सूट पहनूं या ऑफ वाइट? ग्रे रंग का शर्ट। अच्छा, कोई और भी कह रहा था कि मुझे ग्रे रंग बहुत सूट करता है। वैसे तुम्हें कपड़ों का ज्यादा शौक नहीं है? ऐसे नहीं, जो मिलता है वो पहन लेता हूँ शर्ट। बैड टेस्ट, वेरी बैड टेस्ट। मेरे पास तो इस वक्त कम से कम 200 टाइयां होंगी। ओहो, गलती हो गई, वरना मैं आमिर को फोन करके कह देता कि कुछ अच्छी किस्म की टाइयां लेता। शरंगा, वो आमिर आपकी नाजुक हालत का सुनकर आया था कि किसके लिए लाया? ओह यस, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तो भूल ही गया था। फिर कभी। अच्छा शरंगा, फिर मैं चलता हूँ। वैसे तो मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई जरूरत हो तो मुझे दफ्तर फोन कर। अच्छा, सुनो, एक काम करते जाओ, जाने से पहले फोन करके वो अराइवल टाइम चेक करवा दो। तुम तो जानते हो कि मुझे इन इंक्वायरीज पर फोन करना सख्त नापसंद है। नहीं शरंगा, लेकिन अभी तो बहुत देर है। इसमें हर्ज क्या है, मुझे इत्मीनान हो जाएगा। वैसे भी जहाज तो कब का चल चुका होगा। मैं कर दूं मियां साहब। हाँ जी बेहतर। आप हमको बुलाना मांगता? सुबह के वास्ते इतनी तेज मत दौड़ा करो, गिर जाओगी। ओके सर। हालांकि तुम्हारे लिए तेज दौड़ना ही बेहतर है। सुबह सवेरे दौड़ा करो, समझी? ओके सर। और सुनो, असलम से कहो कि आमिर मियाँ का कमरा ठीक कर दे, खुद जाकर चेक करो। जाओ। हाँ, 1 मिनट, अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो ठीक करवा देना, समझी? जाओ, दौड़ जाओ। 10 बजे की फ्लाइट से आ रहा हूँ। जी मैं होल्ड करता हूँ। आखिर तुम कहाँ रह गए थे? तुम्हें मालूम नहीं कि आज रात आमिर आ रहा है 10 बजे? खबरदार से तुम अपने घर से बाहर, अपने कमरे से बाहर गए, समझिए? जाओ कमरे में जाओ। बेहतर। हेलो जी। ओह नो, ये कब हुआ? कहाँ हुआ? जी आमिर मंसूर नाम है।
जरा लिस्ट चेक कर लीजिए दोबारा प्लीज। मैं होल्ड किए। भाई मंसूर का नाम भी मैंने खुद ही रखा था और आमिर का भी। कैसा है? हेलो 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 यस। कंफर्म। सब कोई नहीं। ठीक। क्या बात है शहजाद? कोई खास बात है क्या? क्या वो नहीं आ रहा? तो इसीलिए तुमने नामों की फहरिस्त चेक करवाई है ना? तो क्या बात है बताओ तो सही। शरण आप जरा आराम से बैठ जाए। शहजाद तुम्हारे चेहरे पर कुछ अजीब सी बात है। क्या बात है बताओ मुझे। शरण की बात दरअसल ये है कि वो इस प्लेन पे आमिर आ रहा था। वो क्रैश हो गया। मैंने सर्वाइवर्स की लिस्ट चेक कराई थी। उसका नाम दूसरी लिस्ट में।